ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੋਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਓਨਰ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਦਿੰਦੀ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਦਲੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 200-250 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਨੇ, ਪੱਤੇਖੋਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਮੀਅਤ ਉਲ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਸਦਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰ ਚੰਦ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਮੀਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਜਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ JUI ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਕਾਮਰਾਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰੇ ਸ਼ਾਰੇ ਲਾਏ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਔਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕੁਫਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਔਰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰ ਚੰਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਟੱਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਓ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹਰ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇੰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, टेक्नोलॉजी 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। बहुत मेहरबानी, रब रखा, बहुत शुक्रिया। फेंक के बताऊं तो आप बड़े हैरान होंगे कि राह चलते हुए कोई भी अगर मोटरसाइकिल बेचा रहा है, मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है? सिर्फ 1 लाख रुपए, और वो अगर रेजिस्ट करता है तो उसको गोली मारी जाती है। अगर उसके डिकेट्स को मारा जाता है पुलिस की तरफ से, तो उस पुलिस वाले पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना पाया। वो झुर्गियाँ करते हैं। जब मेरी बंदे मरते हैं, जब मेरी औरतें मरती हैं, जब मेरे बच्चे शहीद होते हैं, जब मेरे उनको अगवा किया जाता है, उस वक्त इंसानियत कहाँ जाती है? उस वक्त झुर्गियाँ क्यों नहीं करते? उस वक्त झुर्गियाँ करके हमको। मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान के उस हिस्से में बैठा हूँ। हम लोग मकबूजा कश्मीर के लिए लड़ते हैं, हमारा हक बनता है, लेकिन आप खुदा के लिए मैं हुकूमत से कहता हूँ
कि मकबूजा कश्मीर को छोड़कर मकबूजा कश्मीर को देखें आप कि मकबूजा कश्मीर में हमसे कितने बड़े जुल्म हो रहे हैं। हमने आखिर ये मजबूरन फैसला किया कि 1200 किलोमीटर से लेकर हमारे 200 बंदे यहाँ पर आए, अपने खर्चे पे अपनी टिकटें लेकर यहाँ पर भी खुद ही अपना खाना खाते हैं, खुद ही चीज़ करते हैं। जमात इस्लामी हमारे दूसरे दोस्त कभी रात को खाना देकर जाते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें तो यहाँ पे एक दिन के लिए बैठना नहीं था, हम लोगों ने तो यहाँ पे ये लगाया था कि हम खैमा लगाएंगे और यहाँ पे मुसलसल बैठे रहेंगे, रात को भी यहीं सोएंगे, दिन को भी यहीं बैठेंगे। लेकिन हुकूमत बड़ी डर गई और उसको डरना चाहिए, क्योंकि अवाम का सैलाब जब उठता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। और ये जो आपके महलात हैं, ये जो आपकी कुर्सियां हैं, ये बह के रह जाती हैं। हम लोगों ने एक शमा जलाई है, ये मैं इस्लामाबाद के लोगों से कहता हूँ कि ये जो शमा हम लोगों ने जलाई है इसलिए जलाई है कि आज वो जो भत्ताखोरी है, जो गुंडागर्दी है, आहिस्ता 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 कराची से ट्रैवल करते हुए सिंध को अबूर कर रही है। तो खुदा न खास्ता कल आपके पास भी यही माहौल होगा। उस माहौल को बचाने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपको भी लड़ना होगा। हम लोग अमन अमान की सूरत हाल के लिए लड़ रहे हैं। मैं उनसे नहीं कहता कि मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए, मैं नहीं कहता मुझे अस्पताल चाहिए, लेकिन वो चाहिए ज़रूर। लेकिन जब तक अमन नहीं होगा मैं कैसे मांगूंगा उससे? मुझे तो बेसिक मसला जो है वो ये है कि मुझे अमन दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने ये कोशिश की है। आप लोग जो मैंने इस्लामाबाद का जज्बा देखा है, इस्लामाबाद की सिविल सोसाइटी देखी है, इस्लामाबाद के वकला देखे हैं, मैं हद से ज़्यादा उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारा अखलाकी तरीके से बहुत बड़ा साथ दिया। क्योंकि कल रात हम लोग जब यहाँ से धरना ख़त्म करके जा रहे थे तो गाड़ियाँ हमारे पीछे लग गई उठाने के लिए, हमें उठाने के लिए गाड़ियाँ लग गई। बड़े मुश्किल से वो जिस तरह फिल्मों में सीन होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलाते चलाते हम रेड जोन में पहुँच गए। मैंने आज मिनिस्टर से भी यही कहा कि मैं आपके पास क्या लेने के लिए आया हूँ, मैं आपके पास अमन लेने के लिए आया हूँ, और आप मेरे पीछे गाड़ियाँ भिजवाते हैं। और वो अगर गिरफ्तार करना है तो हम तो यहाँ बैठे, आप जब चाहें आप गिरफ्तार करके ले जाएं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने यकीन दिलाया कि कुछ नहीं होगा। अब हमारी बातें जो हैं, हमारी कमेटियाँ बनी हैं 2, कल और आज। उस कमेटियों में हम 4 दोस्त हैं इस मजमे से। दिलमुराद खान हैं, उगाई साहब हैं, हाफिज़ नसरुल्लाह चन्ना साहब हैं और मैं हूँ। उनके साथ बात हुई, प्राइम मिनिस्टर तक हमारी बात ये पहुँचाई गई अली जान मज़ारी की तरफ से, और उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी। मोहसिन नकवी, दलाल चौधरी और एक उनके दूसरे MNA थे उमर खान जो पंजाब से हैं। उन्होंने हमें सुना, बड़ी गौर से सुना। पौने घंटे तक हम लोग बैठे रहे, जिसमें हमारे MNA भी बैठे रहे, और उन्होंने कहा कि हम आपको विद इन नो लिमिट टाइम कुछ न कुछ रिलीफ देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद हमारी कुछ ऐसी रुकावटें हैं कि हम लोग सूबों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने कहा कि आप अगर सूबों में इंटरफेयर नहीं कर सकते तो मैं किसके पास जाऊंगा? तो उन्होंने फिर बात की सदर आसिफ जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, इंटीरियर मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से, वज़ीर दाखिला अपना सिंध के उससे, सबसे बातें की हैं। और हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे आज हमारा एक प्रेस रिलीज़ जारी हो रहा है, और उसमें हमें यकीन दहानी कराई गई है कि हम ये थोड़ी कबाहतें दूर करके इंशाल्लाह आपके पास जो आपका सबसे बड़ा डिमांड है ऑपरेशन का, वो हम ऑपरेशन कर रहे हैं। बाकी जो हम लोगों ने, मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जो लोकल पुलिस के मसाइल थे उन पर भी हमारी बड़ी डिस्कस हुई है अपने नुमाइंदों के साथ। उन्होंने कहा है कि 5-6 डिमांड जो आपके हैं ये आपके इंशाल्लाह आपके जाते ही फुलफ़िल होंगे, और हम लोग वहाँ पे 144 भी लगाएंगे। हम लोग वहाँ पे एम्यूनेशन भी नहीं शो करने नहीं देंगे। हम लोग डबल सवारी पे भी वो करेंगे। हमारे गेट हैं बने हुए हैं शहर में, उस गेटों पर भी CCTV कैमरा लगा के सब कुछ करेंगे। ये आप लोगों के जज्बा है, ये आप लोगों का जुनून है, ये आप लोगों की हिम्मत और बहादुरी है कि आप आए हैं इस्लामाबाद में बैठकर। और मुझे प्रेसिडेंट साहब
जतोई साहब जो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, मुझे कह रहे थे डॉक्टर साहब 15 दिन तक आपको कोई नहीं सुनेगा, आप ऐसे बैठ बैठ के चले जाएंगे। मैंने कहा मेरी नीयत में सच्चाई है, इंशाल्लाह आप 2-3 दिन में देखेंगे मेरे पास। आज मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी लीडरान हैं वो बारी बारी आते रहे। आज भी शाहजहां साहब बैठे हुए हैं हमारे पास, दूसरे बैठे हुए हैं। मैं अपनी बहन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपने नारा भी दिया है कि अमन करो वरना कुर्सी छोड़ दो। ये भी बड़ा बहुत अच्छा वो है स्लोगन है, तो हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस्लामाबाद के लोगों को और अपने दोस्तों को, अगर ये जो उन्होंने आज प्रेस रिलीज जारी किया है, अगर उस पर अमल नहीं होता तो मैं अपनी कश्तियाँ जला के खालिद बिन वलीद की तरह यहाँ पर आकर बैठ जाऊँगा। आपको जो कुछ करना है करो, मैं अमल लेके شیرین حیدر صاحب سیالوی کے گزارش کے بچے ہیں شہر ملتے ہیں پاکستان کشمیر میں امن تک، کشمیر میں امن تک، ڈاکو راج کے خاتمے تک، ڈاکو راج کے خاتمے تک۔ ہمارے جلوال کے 2 بندے بیچارے اغوا ہوئے، ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے، ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر آپریشن کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن اور لوکل وہاں کی گورنمنٹ ہے۔ وہاں جتنا بھتہ خوری ہوتی ہے وہاں کا نواب بٹیرا جاگیردار اس کا بھتہ لیتا ہے۔ بولا یہ کون سا بھائی تھا جس نے کہا جاگیردارانہ نظام نامنظور؟ جاگیرداری نظام یہ آپ جو نعرے لگا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی میں جن لوگوں نے انگریزوں کی مخبریاں کی تھی، تحریک خلافت 1920 میں جن لوگوں نے انگریزوں کے گھوڑے کتے نہلائے تھے، ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، جو پارٹی حکومت میں آتی ہے یہ اپنا بوریا بسترا بند کر کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ آپ لوگوں پہ قابض ہیں۔ قصور ہمارا ہے، ہم غریب کے بچے کو، ہم کسان کے بچے کو، ہم مزدور کے بچے کو، ہم ہاری کے بچے کو پارلیمان کی راہ نہیں دکھاتے، ہم نواب و وٹیرا و جاگیرداروں کے پیچھے ان کے گھوڑے کتے نہلانے کے لیے ان سے ہمیں بغاوت کرنا ہوگا، ان سے ہمیں بغاوت کرنا ہوگا، ان کے خلاف ہمیں بغاوت بلند کرنا ہوگا۔ یہ میرے دوست نے بڑی زبردست بات کی کہ اینڈ ٹائم پہ کریڈٹ لینے کے لیے سرکاری جماعت کے MNA ضرور آئیں گے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ 4 سال سے دھرنے دے رہے تھے، جب ڈاکٹر صاحب 4 سال سے کشمیر کی سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہو رہے تھے، اس وقت یہ MNA MPS کہاں پر ایک بھی تھا جو ان کے پاس داد رسی کے لیے آیا تھا؟